Shalom and welcome to CFI India. We are glad to have you here with us today. Today's message is being shared by Pastor Nikhil Chandra and the topic is mentioned on the screen below. Please do watch till the end and do like and subscribe to our channel. Please do also pray for our ministry. Thank you. God bless you. Praise the Lord. So to start off with, we would read a passage, in fact a verse from 2 Chronicles chapter 7 and verse 14. दूसरा इतिहास 14 से हम पढ़ेंगे. And this verse says like this, that if my people who are called or who bear my name will humble themselves, pray, seek my face and turn from their evil ways, I will hear from heaven, forgive their sin and heal their land. और यहाँ पे इस पर लिखा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा. Amen. If we want forgiveness and healing for our land, for our nation, then God has given us the process of getting that. अगर हमें अपने देश के लिए अगर चंगाई की जरूरत होती है और हमारे लिए अगर चंगाई की जरूरत होती है, तो परमेश्वर ने एक तरीका दे रखा है हमारे लिए. We need to follow the steps that the Lord has put out in the scriptures. और परमेश्वर के वचन में जो कुछ बातें दी गई हैं उसको हम पालन कर सकते हैं. And what applies to our nation, then applies to our lives, applies to our families, applies to our communities. और जो किसी राष्ट्र के लिए जो बातें परमेश्वर ने कही हैं वो हमारे लिए भी होती है, हमारे परिवार के लिए होती है और हम स्वयं के लिए भी होती है. So God is saying, if you want healing, if you want blessing, you want forgiveness, you want abundance, then there is a way that you need to go about it. अगर आपको बहुतायत का जीवन जीना है और चंगाई का जीवन जीना है, तो परमेश्वर ने एक तरीका दे दिया है. So first of all, we need to note who this is being addressed to. और पहला जो तरीका हम देखें, ये किसके लिए बोला गया है, ये वचन है किसके लिए. And the Lord says that if my people, that means His people, that means the believer, in fact it would be Israel, it would be the believer, it would be all of the children of God. ये है किसके लिए? ये विश्वासी के लिए है, परमेश्वर के बच्चों के लिए है, इजराइलियों के बच्चों के लिए है, इजराइलियों के लिए है, किसके लिए? Yeah, so when God says my people, it's the first reference is of course Israel. और जब परमेश्वर ये वचन बोलता है कि ये मेरी प्रजा है, तो जब वो मेरी प्रजा बोलता है तो ये इजराइलियों के लिए तो है ही. Yeah, and we have to say by extension those who have been added in through the Lord Jesus Christ, that is the believer who are non-Israelites. और उसके बाद वो उनके ये वचन उनके लिए भी सही में मायने में है, जो लोग इजराइलियों के साथ परमेश्वर यीशु के द्वारा उन पर विश्वास करके जुड़ गए हैं. Yeah, all right, so it applies to all the children of God. So अब जब परमेश्वर की सारी संतान जब हम बन चुके हैं, तो हम सब ये लागू हो जाता है. What is important to note is that this is not addressed to the world, this is addressed to the children of God. और ये दुनिया के लिए वचन नहीं है, ये वचन एक्चुअली है उनके लिए जो परमेश्वर की संतान बन चुके हैं. God is saying, if my people who bear my name, अगर जो मेरी प्रजा के लोग हैं जो मेरा नाम लेते हैं, we bear the name of the Lord, don't we? हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं ना? Right. If my people who carry my name humble themselves, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम लेकर चलते हैं वो अगर नम्र होंगे, God is wanting us, His children, to first of all humble ourselves. पहला चीज जो परमेश्वर वो चाहता है वो करने के लिए कि हम अपने आप को नम्र और दीन बना लें And pray. और प्रार्थना कर लें And seek Him. और देखे परमेश्वर की ओर निहारें. Seek His face, seek His ways. परमेश्वर के तरीकों को जाने, परमेश्वर के चेहरे को निहारें. And turn from our evil ways. God is saying we do evil things. और अपने पाप के तरीकों से हम मुड़ जाएं. Then He says, if all this happens, then I will hear from heaven. और उसके बाद ये तरीके जो परमेश्वर ने दिए, उसके बाद परमेश्वर कहता है कि तब मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दूं. We have a lot to say about our nation. हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो राष्ट्र के बारे में बोलने. We have a lot to say about the way God is angry with our nation and wrong things happen in our nation and this happens and that happens. देश में बहुत चीजें हो रही है, बहुत सी गलत चीजें हो रही है, खराब चीजें हो रही है, परमेश्वर क्रोध हो चुका है, बहुत सारी चीजें हमारे पास है बोलने के लिए. We have a lot of opinion. हमारे पास बहुत सारे ऐसे विचार हैं. But God is giving us the solution to that problem. लेकिन वो सारी समस्याओं का समाधान परमेश्वर ने हमारे दिया. The solution is not lying outside with the world, the solution lies with the house of God. और जो समाधान है इस समस्याओं का वो परमेश्वर की
के भवन में पाया जाता है। Amen. हालेलुया। And he's saying, you want your nation to be healed, then you first humble yourselves. अगर आप अपने देश को चाहते हैं कि वो चंगाई प्राप्त कर ले तो तुम्हें और मुझे You humble होना first पड़ेगा। pray. You first seek my face. You first turn from your evil आपको ways. पहले प्रार्थना करना पड़ेगी, आपको पहले अपने पापों से पश्चाताप करके मुड़ना पड़ेगा और परमेश्वर के चेहरे को निहारना And पड़ेगा। then I will hear from heaven and heal your nation. और तब मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और तब मैं तुम्हारे देश को चंगा कर दूंगा। And that happens with our family as well. That is with our community as well. हमारे परिवार के साथ भी यही होता है, हमारे जो एक तरह परिवार के लोग हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। Now, humbling, one way of humbling is to fast and pray. और एक तरीका ये है कि अपने आप को नम्र करने का कि हम उपवास और प्रार्थना कर लें। Because when we are fasting, we change our dependency from ourselves to God because He gives the strength. और जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर ऐसी ताकत देता है कि हम परमेश्वर के करीब और बढ़े। Amen. Sometimes in life we walk a difficult path. और बहुत से ऐसे समय ऐसा होता है हमारे साथ कि हम बहुत ही कठिन चीजों से होकर गुजरते हैं And God allows us to walk that path. और परमेश्वर ये करता है कि हम उस कठिनाई से होकर गुजरे। He's like a parent that says, okay, you want to make a wrong choice, no problem, go ahead and make it. परमेश्वर एक ऐसे माँ बाप के समान होता है कि वो बोलता है कि ठीक है तुम कुछ गलत चीजों को निर्णय लेना चाहते हो तो ठीक है ले लो। He doesn't control our lives. वो हमारे जीवन को वो नियंत्रण में नहीं रखता He है, guides our lives. लेकिन वो हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर देता है। But he allows us to make choices. लेकिन वो आपको और मुझे चुनाव दे रखा है। And sometimes we make choices which are not good. हम कभी कभी वो चुनते हैं जो खराब चीजें हैं, He allows us to make those choices. लेकिन परमेश्वर हमें वहां निरंतर में नहीं रखता है। And परमेश्वर हमें बोल देता है कि तुम करो जो तुम्हें चुनना है, But he's still watching over us. लेकिन वो फिर भी हमें देखता रहता है कि हम गलत और सही में से जो भी चुन रहे He हैं। doesn't want us to be broken. वो हमें ये नहीं चाहता है कि हम टूट जाएं, He doesn't want us to be destroyed. वो ये नहीं चाहता है कि हम नाश हो जाएं, But he wants us to change. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अंदर से भीतरी रूप से बदले जाएं। But he waits for the right time. और उसके बाद वो उस सही समय का इंतजार करता है कि जब हम बदल जाएंगे। And if we are struggling in some area of our lives, we need to stop and think, why is it happening? कोई भी एक ऐसे जीवन के क्षेत्र में अगर हम परेशान हैं तो हमें रुकना है और सोचना है कि ऐसा क्यों है। Don't always blame the devil. हमेशा शैतान को दोष ना दें। Of course, he comes to steal, to kill, to destroy. शैतान आता है तो नाश करने के लिए, सब कुछ नाश करने के But लिए। very often we bring upon problems upon our own lives. लेकिन कई बार हमारे चुनाव ही तो हैं जो हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को ले आते हैं। And if you open with me to the book of Lamentations, chapter 5, विलाप गीत की पुस्तक में अगर देखेंगे 5वें अध्याय में, okay, you'll find that after Jeremiah. यिर्मयाह की पुस्तक के बाद है पुराने नियम। Lamentations, which is written by the prophet Jeremiah. यिर्मयाह ने लिखी थी ये विलाप गीत की किताब। And in chapter 5, verse 21, Jeremiah is crying in front of the Lord. यहाँ पे यिर्मयाह नाम का जो नबी है, जो परमेश्वर का दास है, वो यहाँ रो रहा है। The background of this is that the city of Jerusalem has been destroyed. और जो इसका पृष्ठभूमि को इस प्रकार है कि जो इजराइल की जो भूमि है वो यरूशलेम है वो नाश कर दी गई है। And the people of Israel have been taken captive into Babylon. और इजराइलियों को बाबुल देश में ले गया है। And Jeremiah, the prophet of God, is crying and praying to God. और यिर्मयाह यहाँ पे ये सब दृश्य देख के निराश हताश हो गए रो रहा है परमेश्वर के Now, साथ। Jeremiah is not a sinner. यिर्मयाह का जो नबी था वो परमेश्वर का दास था, He वो was a पापी righteous नहीं था, man. वो तो धर्मी व्यक्ति But he's था, praying on behalf of the people. लेकिन वो परमेश्वर के लिए वो रो रहा था। And this is his prayer. और इसकी प्रार्थना कुछ इस He प्रकार है। says, Lord, bring us back to you and we will return. Renew our days as of old. हे यहोवा हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल की नाई हमारे दिन बदल कर ज्यों के त्यों कर दे। Bring us back to you, O Lord. हमें अपनी ओर ले आ, अपनी ओर खींच ले परमेश्वर, And we will return. और तब हम वापस आ जाएंगे। He's crying out. He's remembering the glorious days of Israel. और वो इजराइलियों की बहुत सी महान दिनों के विषय में वो सोच कर रो रहा है। And he realizes that something has happened which has caused Israel to now go into captivity. और उसके बाद अब कुछ वो याद कर रहा है, कुछ ऐसी चीज हो गई है जिसने अभी बंधुआई में इजराइलियों को ले गए हैं। And so he's praying, and of course he's praying in his language, the language of the Bible, which is Hebrew. इब्रानी भाषा में जो पवित्र शास्त्र की जो भाषा है उसमें वो प्रार्थना कर रहा है और रो रहा है। And he uses a word over here which we must note. और एक ऐसा वचन यहाँ पे इस्तेमाल करता है जो हमें जानने की जरूरत है। He uses a word called shub.
शुभ नाम का एक जो शब्द है उसका So I इस्तेमाल would होता like you है। to save this with me. Shubh. शुभ। Okay, if you speak Hindi, then it's a common word in Hindi, but it means something in Hindi and it means something else in Hebrew. और इब्रानी भाषा, हिंदी भाषा में भी एक शुभ हम बोलते हैं, शुभ का अर्थ है, लेकिन शुभ का अर्थ हिंदी में अलग है और इब्रानी भाषा में I think अलग है। in Hindi, Shubh will mean good, right? शुभ का मतलब बहुत ही अच्छी चीज माना जाता है। In the language of the Bible, which is Hebrew, the word Shubh means actually to return. और शुभ का अर्थ जो बाइबल की जो भाषा है यानी इब्रानी भाषा में, उसका अर्थ ये है कि लौट आना Or turn back. यानी कि फिर जाना, फिर से। So when you say the word Shubh, it means that you're turning back towards something. अगर जब ये शब्द को हम सुनते हैं शुभ, तो इसका अर्थ ये होता है कि आप मुड़ जाए हैं, वहां से मुड़ के वापस आ रहे हैं। And Jeremiah realizes that the nation at large has turned away from God. और यर्मिया जो है वो ये जान चुका है कि जो परमेश्वर के जो लोग हैं वो परमेश्वर की ओर से मुड़ चुके हैं। And so he carefully uses this word Shubh, which means to return back to God. और वहां पे ये लोगों को प्रार्थना के में अपने ये वचन को याद कर रहा है, बोल रहा है कि परमेश्वर की ओर फिर से मुड़ जाओ, मुड़ के आ जाओ। He knows because they've turned away from God, that's why calamity has come upon them. क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से मुड़ चुके हैं, इसलिए कठिनाई इनके जीवन में आ गई है। And it's a pattern of the Bible that we need to realize that sometimes when calamity comes upon our lives, we need to introspect, have I turned away from God? और कई बार ऐसा बात होता है कि कई बार हमारे जीवन में जब कुछ कठिनाई या समस्या आ जाती है, तो हमें एक बार रुकना है और सोचना है कि क्या मैं परमेश्वर से दूर तो नहीं होता जा रहा हूँ। And and to turn back to God is what is called teshuvah. और तिशुआ नाम का एक शब्द है इब्रानियों में। So you can say it with me, teshuvah, इस तिशुआ, which in English we call as repentance. और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं पश्चाताप। Repentance. पश्चाताप। So what does it mean to repent? पश्चाताप का अर्थ क्या है? Ultimately, every word has to have a definition. हर एक शब्द का एक संदर्भ है। And to repent in the language of the Bible, it means to turn back, to turn around, and to return back to God. और धर्मशास्त्र में इसको इस तरह से लिखा गया है कि आप पीछे मुड़े और मुड़ के परमेश्वर की ओर वापस चले आए। Amen. That is what biblical repentance is. बाइबल में पश्चाताप का अर्थ ये होता है कि मुड़ के फिर के परमेश्वर के पास चले आना। It's not about just saying sorry. ये सिर्फ मुझे क्षमा कर दो प्रभु, यही इसका मतलब नहीं है। So here Jeremiah is praying out, and that's what he means. Israel has to come back to God. और यार मैं यहाँ पे रो के परमेश्वर से दुआ मांग रहा है कि इजरायलियों आपको मुड़ के परमेश्वर की ओर आ जाना है। What was Israel's downfall? What was their problem? उनकी समस्या क्या थी? Well, God had given them a way to live. उनको एक तरीका परमेश्वर ने जीने का God had given His laws. God had given His instructions. परमेश्वर ने अपने नियम दे दिए थे, अपने कायदे कानून उनको दे दिए थे जीने के लिए। And a lot of the hearts of people started to turn away over a period of time. लेकिन ये सब मानते फिर भी लोगों के हृदय कठोर बनते चले गए। And a time came when laws were being followed not with the heart but just with the mind. But the heart had turned away from God. और ये सब कानून कायदे नियम मानते उनका हृदय ऐसा कठोर हो गया कि वो ये उनका जो हृदय है वो परमेश्वर की ओर से मुड़ गया। वो सिर्फ रीति रिवाजों में ही फंस के रह गए। Whereas God was concerned with the heart. लेकिन परमेश्वर रीति रिवाजों पे मायने नहीं रखता था। रीति रिवाज इसलिए दिए थे ताकि हमारा हृदय परमेश्वर की ओर लगा रहे, लेकिन वो उनका हृदय परमेश्वर की ओर। Israel is the chosen people of God. परमेश्वर के चुने हुए लोग इजराइल हैं, वो थे और आज भी हैं। And He called them holy people, holy kadosh. उनको परमेश्वर कादोश का शब्द इस्तेमाल करके बोलता है कि ये प्रजा पवित्र है। And kadosh means, holy means you're set aside for God's work. और इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे लोग जिनको चुन लिया है और अलग कर दिया गया है उनको कुछ कार्य के। You can't be like the world, and God had said to Israel, you cannot be like the nations of the और world. जब उनको चुन के अलग कर दिया गया है तो आप दुनिया की तरह नहीं जी सकते। Israel was not saved by obeying the laws of God. They were already part of God's family. और वो परमेश्वर जो इजरायली लोग हैं, जो इजराइल के लोग हैं, वो उनका जो उद्धार है वो परमेश्वर के नियम मान के नहीं हुआ, वो तो परमेश्वर के संतान पहले ही से है। But because they were part of God's family, they had to obey certain ways and certain laws and certain systems. क्योंकि वो परमेश्वर के परिवार का हिस्सा है, तो इसलिए परमेश्वर के परिवार के जो कायदे कानून और जो नियम है उनका पालन करना उनके लिए बना है। And that of course applies to you and me as believers as well. और परमेश्वर ने भी हमको, आपको, मेरे लिए भी ये कानून। God has set a standard for us. It's not
that standard is not so that we get saved, but because we are saved, we have to live by a certain standard. और परमेश्वर ने हमें वो एक स्तर बनाया है हमारे लिए, और परमेश्वर ने हमारा स्तर यीशु मसीह के द्वारा बनाया हुआ है, ताकि वो स्तर को हम लोग फॉलो करके या पालन करके हम बचाए ना जाए, लेकिन स्तर को फॉलो करके परमेश्वर के परिवार में जुड़े रहें और बने रहें। Maybe you've read in the scriptures somewhere where God is angry with Israel and he says, I don't want your Shabbat, I don't want your feast, I don't want your sacrifices. कई बार बाइबल में धर्मशास्त्र में ये भी पढ़ने में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कई बार गुस्सा हो गए अपनी प्रजा से, बोलते हैं कि मैं तुम्हें जो तुम्हारे सबत के दिन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे जो ये नियम कायदे मालूम करते हैं वो नहीं चाहिए। It's like God telling us today, I don't want your tithe. जैसे परमेश्वर आज के दिन में आपसे मुझसे कहते हैं मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए ही नहीं। I don't want your guitar, I don't want your keyboard, I don't want your big lights, I don't want your cameras, I don't want all this. मुझे लाइट, कैमरा, गिटार, म्यूजिक कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। It's effectively saying the same thing. अगर हम उसको देखें आज के तरीकों में तो वो ऐसा ही है। It doesn't mean God is saying don't tithe. परमेश्वर ये नहीं बोल, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसा परमेश्वर के ना दो। It doesn't mean that God is saying don't worship me. इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप ये परमेश्वर की उपासना करना भी बंद कर। What God is saying is I don't want your routine. परमेश्वर ये कह रहा है कि आपके जो रीति रिवाज जो बन चुके हैं वो नहीं चाहिए। I want your heart first, and from your heart all of these things must flow out. मुझे आपका हृदय पहले चाहिए, और हृदय के द्वारा जब आप ये रीति रिवाजों को फॉलो करते हो तब मैं उसको। God was not bringing an end to the law to Israel or bringing an end to the feast, but he was saying, I first want your heart, and out of the abundance of your heart I want all of these things to happen. आपके हृदय जब भर जाएगा और आपके हृदय में जब ये सब चीजें भर जाएंगी और हृदय मेरे नजदीक आ जाएगा, तब मैं आपके नजदीक में चलूंगा। And that's what Jeremiah was praying. और यहाँ पे यिर्मयाह कुछ इसी तरह के God was dealing with the heart of the people. परमेश्वर हमेशा से ऐसा परमेश्वर है जो हृदय में से बातचीत करने वाला परमेश्वर। In fact, just something that may interest you is that the word love in English comes from the Hebrew word lev, which means heart. अंग्रेजी का जो शब्द है लव, वो इब्रानियों शब्द जिसका अर्थ है लेव मतलब हार्ट, हृदय। In Hebrew, the word heart is lev. हार्ट का अर्थ इब्रानियों में लेव है, लेव। And English, when you say heart, when you say love, a heart is drawn. It comes from here. अंग्रेजी भाषा में जब आप दिल को बना देते हो और प्यार को दिखाते हो तो वो यही इब्रानी भाषा से आता है, जिसका अर्थ है दिल। I don't know what the heart with the arrow means, but बहुत से ऐसे दिल हैं जिसमें से तीर भी निकला होता है, लेकिन वो तीर का तो भाई को पता नहीं है। someone knows, you can tell me after the किसी को service. पता है वो तीर कैसे लगता है तो फिर वो बता सकता है। But the point I'm making is that God never sent his son Jesus, Yeshua, because Israel failed to keep the law. परमेश्वर ने यीशुआ को इसलिए नहीं भेजा कि वो जो नियम है, कायदे कानून है, वो लोग पालन नहीं कर पा रहे थे। He had already planned to send him right from the beginning of the universe. परमेश्वर ने पहले ही से योजना बनाना की थी कि यीशु इस धरती पर आएंगे। In fact, Revelation chapter 13 and verse 8 says that he is the lamb that was slain from the very foundations of the world. और प्रकाशित हुआ कि 13:8 में लिखा है कि वो एक ऐसा मेमना है जो पहले से ही उसका ये निर्धारित कर दिया गया था कि उसका वध होगा। So before God even created the Garden of Eden, God had planned that a time will come when I will send my son and he will die on behalf of all sinners to bring them back to me. आदम के लिए वो वाटिका बनाने से पहले ही परमेश्वर ने सुनिश्चित कर लिया था कि मैं अपने बालक को भेजूंगा जो यीशु है, उसको भेजूंगा और वो मानव जाति के लिए मरेगा। Amen. हालेलुया। So we need to get our thinking right. हमें यहाँ पर सोच को सीधा करना है। Jesus didn't come because Israel failed to keep the law. यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि जो इजराइल के लोग थे वो कायदे कानून नियम पालन नहीं The करते। coming of Jesus was already planned. यीशु मसीह का आना निर्धारित था। Because the heart of man is what God knew. परमेश्वर मनुष्य के हृदय को जो परमेश्वर वो चाहता God है। had told Israel, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने हृदय से, अपने मन से, अपने विवेक से परमेश्वर को प्यार We करें। find that in Deuteronomy chapter 6 and verse 5. और हम deuteronomy में इसको देखते हैं व्यवस्था विवरण में 6 और 5 में. 6-5। Now, in the Gospel of Mark, और मरकुस की पुस्तक में you find that some of the teachers of the law, they came to the Lord Jesus and they asked him, Master, Rabbi, Teacher, tell us which is the greatest commandment. परमेश्वर के नियम के कुछ शिक्षक हैं, वो यीशु मसीह के पास आते हैं और वो यीशु मसीह से सवाल करते हैं कि बताओ रब्बा, मुझे हमें की
पर महान आज्ञा क्या है? And he goes back to the same commandment from Deuteronomy. और यीशु उसी व्यवस्था विवरण की पुस्तक का And he विवरण says the करते हैं। greatest commandment is to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. और उन शिक्षकों को जो यीशु मसीह हैं वो ये शिक्षा देते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि परमेश्वर को अपने दिल से प्यार करो, Because if our heart is right, क्योंकि आपका हृदय अगर ठीक then our है actions will be right. तब आपके जो कार्य हैं वो भी सही रहेंगे। Isn't that what the Lord Jesus said? He said that from the abundance of your heart, the mouth speaks. और आपके हृदय से भरपूरी होकर ही आपका मुख वाक्यों को बोलेगा। If you find praise naturally coming out of your mouth, praise for God, it means your heart is in the right place. अगर आप कभी अपनी स्तुति आराधना परमेश्वर के साथ हमेशा करते रहते हैं, इसका अर्थ ये है कि आपका हृदय परमेश्वर की आराधना से भर चुका If है। you find that you're all the time a negative person, all the time grumbling, all the time angry, your heart is in the wrong place. अगर आप हर समय बुड़बुड़ाएं हमेशा गुस्सा क्रोधित होते रहे तो यानी कि आपका हृदय है जो बहुत दूर है परमेश्वर से। Because that's what the master told us. क्योंकि यही तो हमारे परमेश्वर Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. अपने हृदय की भरपूरी से ही हमारा मुंह के वचन बाहर निकलते And हैं। therefore, we are to love the Lord with all our heart. Our heart is to be right, and then our actions will be right. इसलिए हमें परमेश्वर को हृदय से प्यार करना, अगर हमारा हृदय सही जगह पे है तो हमारे मुख से निकले वचन भी सही रहेंगे। And if something's wrong in our lives, we need to first examine our hearts. अगर हमारे जीवन में कुछ गलत है तो हमारे हृदय को जांचने की That's exactly what happened with Israel. इजराइल के साथ कुछ ऐसा ही The तो हो गया। heart went in the wrong place, and then the actions started to go wrong. हृदय कहीं और फिर गया और फिर उसके बाद जो उनके कार्य थे वो गलत होते चले गए। We always need to examine the heart first. हमेशा हमारे हृदय को जांचने की आवश्यकता पहले है। Amen. So now let's come to the word teshuvah that we talked about, repentance. आइए हम परमेश्वर के पश्चाताप करके जो शब्द है उसको देखें। तेशुआ इब्रानी If I'm भाषा में। traveling on a road, अगर मैं एक रास्ते पे चल रहा हूँ, it's like a path. It's like in life also, right? We travel a path. अगर एक ऐसा मार्ग जो है उसमें हम जा रहे हैं, Teshuvah means I stop, I take a U-turn, and I come back. और तेशुआ का अर्थ ये होता है कि मैं चलते चलते रुका, मुड़ा और वापस चलने लगा। It's very different from saying, "Oh, I realized my mistake, but I'll continue down the same path." और ये इससे अलग है कि आप रुकें, अपनी गलती को सोचें और फिर एहसास करें कुछ गलत हुआ और फिर वही रास्ते में चलते रहें। No, then ये we इसका have, अर्थ नहीं है। then there has been no repentance at all. इसका मतलब है कि आपने पश्चाताप तो किया ही नहीं है। Teshuvah or biblical repentance is action based. और यहाँ पे जो तेशुआ का जो अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि वो हमारे कार्यों के द्वारा दिखाया जाता है। I feel sorry to say, but we Christians sometimes have made repentance very cheap. और हमने कई बार ये मुझे कभी कभी दुख भी होता है कि ये सोच के कि जो हम विश्वासी लोगों ने जो पश्चाताप है उसको बहुत ही हल्के में ले लिया। If we do something wrong, we simply go and say, "Arey brother, sorry." हम कुछ भी अगर कुछ गलत कर देते हो तो हम बस जाते हैं, अरे भाई मैं क्षमा चाहता हूँ। Yeah, I'm sorry, and then come on, let's move ahead. चलो बस ठीक है अभी बस सॉरी बस let's So if we are not concerned with moving ahead, then the biblical process of stopping and turning back. या उनका ये अर्थ नहीं है, वो रिपेंटेंस वहाँ ऐसा सॉरी नहीं है कि आप रुके, मुड़े और वापस चले गए। हाँ, but we just want to stop, say sorry, and move ahead. We want to keep moving. और हम रुक के मुड़ के वापस नहीं आना चाहते, हम मुड़ के बस एहसास लेके और वापस चलते ही चले जाना चाहते। But the biblical system is not like that. और लेकिन जो परमेश्वर का जो तरीका है वो ऐसा नहीं है। If you look in the scriptures, in fact, if you read the book of Leviticus, अगर आप it tells you about a lot of sacrifices. लय व्यवस्था की पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सारे बलिदानों के बारे में लिखा हुआ है Sometimes it's complex to read, और बहुत ही कठिन होता है उसको but when you पढ़ना। get the heart of it, you understand. लेकिन अगर हृदय से अगर पढ़ें तो अगर उसके हृदय को जाने तो कैसा है? If I lived in biblical times and I committed a sin, I had to go and make a sacrifice. और अगर मैं पुराने नियम के समय में अगर रहता, अगर मैंने कुछ पाप कर लिया था तो मुझे जाके एक बलिदान को देना पड़ जाएगा। Because sin separates me from God. क्योंकि जो पाप है वो हमें परमेश्वर से तो अलग कर देता So I है। have to be restored to God. तो उसके बाद हमें वापस से परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए God didn't need the sacrifice, but I needed it परमेश्वर को वो बलिदान नहीं चाहिए था, लेकिन बलिदान मुझे चाहिए था in order to get restored. परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए। वो बलिदान की आवश्यकता Now हमारे that लिए थी sacrifice would cost me money. और जो बलिदान करेंगे उसके लिए आपको कुछ देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। Now let's say I had to bring a lamb, अगर कुछ भेड़ खरीदना है या लैम खरीदना है, बकरा a खरीदना goat. Okay, how much is the goat cost today? है, आज के जमाने में बकरे का goat. क्या रेट है, मटन का क्या रेट है? Mutton's what? Around 800 a kilo? हाँ, One goat would be about 10 kilos? 715 बावदान। 715 Baudan? Okay, 10 kilos, one goat?
10 किलो का अगर एक बकरा होता है So one 750 goat रुपए will किलो, be what? Around 7,500. 7,500 रुपए का खर्चा आएगा। So 10 if केजी का I माल है। hurt him, the cost to me is 7,500 rupees to get restored in my relationship. अगर भाई ने मुझे कुछ दुख पहुंचाया तो मुझे 7,500 रुपए देने पड़ेंगे ताकि हम दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाने के लिए। Is that good or bad? ये अच्छी चीज है या खराब है? It's good. I'll tell you why. ये अच्छी चीज है, क्यों? It makes sure that I don't repeat my mistake. इसके बाद क्या होता है कि अब जब वो बलिदान आप देते हो 7,500, तो आपको दोबारा आप वहां नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि मेरे को वापस 7,500 रुपए देने पड़ेंगे। See, if it's free, I'll just come say, "Hey, bhai, sorry," and then after 1 week, I've done the same thing again. और उसके बाद अगर ये मुफ्त में होता है तो हम क्या करेंगे? अरे सॉरी, क्षमा कर दो मुझे, चलो वापस करेंगे। बस हम ऐसे हल्के में ले लेंगे। So God made sure that इसलिए He puts a system in place by which people realize that it pinches me so that I won't do it again. इसीलिए परमेश्वर ने ये तरीका बनाया था आपके मेरे लिए कि ताकि हम जब बलिदान करें तो बलिदान हमें चुभे, इसलिए हम उसको दोबारा ना करें। Amen. God didn't need the blood. परमेश्वर को वो खून नहीं चाहिए था। God didn't need the animal. परमेश्वर को वो मेमना नहीं चाहिए था। He owns everything. वो सब कुछ तो उसी का ही है। He did it so that the people would realize. वो उसने ऐसा कर दिया ताकि आप और मैं जाने, लोग जाने। But now we have the sacrifice of Yeshua, Jesus. अभी हम जो विश्वासी लोग हैं, हम यीशु मसीह के ऐसे मेमने के रूप में So we say, no problem, brother, I've hurt you, it's okay. God has already paid और the price. अब हम शायद ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि अरे अरे आपको मैंने दुख दिया है मेरे भाई मेरे बहन, लेकिन अभी तो यीशु है, यीशु ने बलिदान दे दिया है, उसको क्षमा कर दिया है। So I've borrowed his कार. तो मैंने, जैसे भाई ने मेरी कार लिया And I've crashed it somewhere. और मैंने उस कार को कहीं ठोक दिया, Okay, there's few scratches on it. बहुत से कुछ स्क्रैच आ गए So उसमें। I come to him, अरे भाई, sorry यार, ठीक है, इस करा दो. उसके बाद भाई ने मेरी कार वापस लौटा दी और बोले कि अरे ये थोड़ा सा इसमें डेंट लग गया है, It's okay. ठीक करा लेना, कोई बात नहीं, सॉरी यार, गलती हो गई। You know, we live under grace. अभी तो अनुग्रह है ना, मुझे आप मुझे अनुग्रह करके माफ कर देना भाई। That's become our attitude. अब इस तरह का कुछ हमारा स्वभाव बन चुका है कि हम अनुग्रह में जीने के साथ We've made sorry to be cheap, and we've actually sometimes we lighten the fact that Jesus paid a heavy price for our forgiveness. और हमने कुछ ऐसा ही तो बना लिया है कि परमेश्वर ने ऐसी महान बलिदान दे दिया है, लेकिन हमने परमेश्वर के वो महान बलिदान को बहुत ही सस्ता बलिदान बना दिया है। We do it at times. I'm telling you, look at the attitude. हमारे हृदय को देखो, कई बार हम बहुत बार ये चीज को करते हैं Because we just take it for granted. क्योंकि हम उसको बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। And the point I'm trying to make is that we need to have a heart of repentance which is turning around. और पर हमें क्या करने की जरूरत है कि हमें एक ऐसे हृदय की जरूरत है, एक ऐसे पश्चाताप के हृदय की जरूरत है जो रुके, मुड़े और परमेश्वर की ओर चले। We sin against God. परमेश्वर के रूप में भी हम We sometimes sin against man. पर हम मनुष्य के विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में भी पाप करते Remember, हैं। we have to love the Lord and we have to love our neighbor. हमें परमेश्वर को भी प्यार करना है, हमें अपने पड़ोसी से भी प्यार करना है। But every time I breach that relationship or breach this relationship, I've come out of love and I'm no longer operating in love. जब मैं मनुष्यों को दुख दे देता हूँ या जब मैं परमेश्वर को दुख दे देता हूँ, तब मैं उस हृदय से, वो परमेश्वर के प्रेम से, लेव से बाहर आ जाता हूँ। And that needs to be restored. और वो प्रेम जो है वो वापस से परमेश्वर के साथ जुड़ने की And that आवश्यकता है। cannot be restored by saying, sorry God, and then I continue to do this. और same ये thing. ऐसे नहीं जुड़ जाता है कि आप सिर्फ परमेश्वर की ओर देखिए, परमेश्वर मुझे क्षमा कर देना, और फिर आप अपने रास्ते में वापस Yeah, आएंगे। I mean, we just do that, right? Sit at night. Sorry God, let me sleep well. Good night. और उसके बाद हम बस ऐसे ही बेड पे बैठे ऐसे ही तो बोलते हैं कभी कभी, गया प्रभु मुझे क्षमा कर देना, ये पाप कर दिया, उसके बाद बस सो गए। This is not the biblical way. ये परमेश्वर का तरीका नहीं The है। biblical way is we stop and we turn around and we go back. और परमेश्वर का तरीका है कि आप रुकें, मुड़े और परमेश्वर की ओर चलें। See, the problem is that within the church circles, many of our fellow believers think that the believer does not need to repent. और बहुत से ऐसे कलीसियाओं में भी जो दूसरे भाई लोग बहन लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि विश्वासियों को शायद पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं, Because we live in the New Testament age. क्योंकि हम परमेश्वर के नए नियम में जी रहे हैं। Jesus has paid the price. Why do I need to repent? यीशु मसीह ने तो ऑलरेडी बलिदान दे दिया है, हमें पश्चाताप की जरूरत ही नहीं है। But rather than have opinions, let's see what the Bible says. अपने विचार बनाने से पहले आप देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है। Let's start with John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा के, अगर Everyone's heard of him? यूहन्ना बपतिस्मा वाले के बारे में What was सुना his है? message? उसका संदेश क्या था? Okay, now John the Baptist is not found in Genesis to Malachi, but he's found in the
New Testament यूहन्ना scriptures. बपतिस्मा का जिक्र नए नियम में किया गया है, पुराने नियम में नहीं है। All right, what was John's message? यूहन्ना का मैसेज Matthew chapter 3 and verse 2. 3:2 में कुछ इस His प्रकार लिखा है, message was, repent, for the kingdom of heaven is at hand. पश्चाताप करो, प्रायश्चित मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। Now remember, John is talking in Hebrew. याद रखो कि यूहन्ना जो बोल रहा था अपने जुबान से वो इब्रानी भाषा। So what's he saying? क्या बोल रहा है He's वो? saying, do teshuvah. वो परमेश्वर वो तेशुआ बोल That's the बोल word रहा है he करने used. के लिए। तेशुआ का अर्थ Which- ये है कि पश्चाताप। Which the translators of the Bible have translated as repent. उन्होंने इंग्लिश में इसका अनुवाद उस प्रकार किया है कि पश्चाताप। And what does teshuvah mean? तेशुआ का अर्थ क्या है? It means you stop and you turn back. रुको, मुड़ो परमेश्वर की ओर। Amen. आमीन। And John is saying that, listen, consider your ways, stop and turn back. Don't continue on that way. और यूहन्ना ये बोल रहा है कि रुको, मुड़ो परमेश्वर की ओर, आगे मत चलो। That was John. यूहन्ना All right, what was the message of Jesus? यीशु मसीह ने क्या कहा? Matthew chapter 4 verse 17. मत्ती 4:17 में कुछ प्रकार लिखा है, And that was the first message that he preached. और यहाँ पे पहला वचन परमेश्वर It says, का from that time, Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. और यीशु मसीह ने तब से ये प्रचार बोला कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। That was his message. He began to say, that means it's in continuity. और तब ये संदेश परमेश्वर के मुख से निकला, और वो परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा के बाद परमेश्वर यीशु मसीह ने भी वही संदेश को आगे बढ़ाया। Aren't we called to preach the gospel of Jesus Christ? क्या हमको और आपको परमेश्वर ने ये नहीं बुलाया कि हम परमेश्वर के संदेश को प्रचार Well, his करें? gospel was clear. लेकिन परमेश्वर का जो संदेश था वो बहुत ही स्पष्ट है। Repent, for the kingdom of heaven is at hand. मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। So again, he used the same word, teshuvah, एक बार फिर वही वचन को इस्तेमाल किया, which means to stop and to turn back. रुको, मुड़ जाओ पीछे। True biblical repentance. इसका अर्थ है बाइबल में। All right, what did Paul preach? पौलुस ने क्या बोला? In 2 Corinthians chapter 7 and verse 10, दूसरा कुरिन्थियों 7:10 में पौलुस ने क्या Paul बोला? talks here about repentance. यहाँ भी वो जो पौलुस है वो पश्चाताप के And बारे he में, says there are two kinds of sorrows that you can see. दो तरह के जो दुख है यहाँ पे, One is the worldly sorrow and the other is godly sorrow. एक दुनिया का दुख और एक है परमेश्वर का दुख। And he says, godly sorrow worketh repentance to salvation. और जो परमेश्वर का जो दुख है वो पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर की ओर लेके So आता है। he's saying in simple words, he says, godly sorrow leads to repentance or teshuvah, turning around, and that brings salvation. और यहाँ पे वो पौलुस बता रहा है कि जो परमेश्वर का जो दुख है वो हमें परमेश्वर की ओर मोड़ देता है पश्चाताप के द्वारा। Amen. हालेलुया। Worldly sorrow is just, I'm sorry. दुनिया का दुख कैसा है? जो सिर्फ वो बोलते करें मुझे क्षमा कर। Oh, and some people can't even say sorry. और कुछ लोगों They को बहुत find it दिक्कत very होता है, difficult. बहुत दिक्कत होता है क्षमा बोलने के लिए। Very difficult. बहुत दिक्कत की बात। But Paul is saying that's the way of the world. लेकिन ये मनुष्यों का तरीका है। But the way of God is परमेश्वर का तरीका, to have a godly attitude, godly sorrow. परमेश्वर का दुख, And that परमेश्वर leads to teshuvah. और परमेश्वर का दुख जब हमारे हृदय में आता है तब वो हमें पश्चाताप की ओर ले जाता That leads to repentance. है। वो हमें पश्चाताप की ओर ले Whenever जाता है। you see the word repentance in the Bible, remember it's teshuvah. और जब आप पढ़ोगे बाइबल को और जहाँ पे आप पश्चाताप को देखोगे शब्द को, तब ये अर्थ आप समझ लेना कि रुको, मुड़ो, तेशुआ। Yeah. Look, stop, turn around, U-turn. रुको, फिर से पीछे मुड़ो। Amen. Hallelujah. Because repentance is seen in action. और जो पश्चाताप है वो कार्यों के द्वारा दिखाया जाता है। Now, what about the book of Revelation? प्रकाशित वाक्य में क्या बोला We गया है? consider the letters of Paul, we consider the letters of Peter, we consider the letter of James, but why don't we consider the letters of Jesus Christ? और यीशु मसीह की एक पत्री है जो परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में लिख दी है, उसमें हम क्या देखते हैं? He has written 7 letters. 7 पत्रियां लिखी गई हैं यहाँ पे। Written to 7 churches means writing to the believers. यहाँ पे 7 चर्चों कलीसियाओं को लिखी गई है, इसका मतलब विश्वासियों को लिखी गई है। 4 out of 7 churches are told to repent. 4 उसमें से 7 में से 4 जो कलीसिया थी उनको बोला गया था कि पश्चाताप करो। It means the believers are being told to repent. इसका अर्थ ये हो रहा है कि जो विश्वास करने वाले लोग हैं आप और मेरे जैसे, इनको पश्चाताप करने के लिए बोला गया है। In the words of the Lord Jesus Christ, He's telling the church, He's telling the believers, you need to repent. परमेश्वर ने अपने मुख से वहाँ प्रकाशित वाक्य में बोला है विश्वासियों को जो यीशु मसीह को मानते हैं कि पश्चाताप करो। And as I said, repentance is turning around, but turning around to what?
turning back to God. और जब तेशुआ मतलब इसका अर्थ ये है कि आप मुड़ जाओ, पीछे पीछे मुड़ जाओ, लेकिन और मुड़ के जाओ कहाँ? परमेश्वर की ओर। Exactly, turn back to God. मुड़ जाओ, लेकिन परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ। We heard about King David, right? You spoke about him. दाऊद के विषय में हमने देखा। And yes, in Jewish tradition, he is considered to be a stepchild. और यहूदियों के जो तरीका है उनके वहाँ पे उनको एक अवैध बच्चा के बालक के नाम पे जाना। That's why all his other brothers rejected him. इसलिए जो उसको वहाँ पे जो बाकी जो उसके भाई लोग थे वो उसका तिरस्कार करते थे क्योंकि उसको अवैध बच्चा माना जाता Now था। we talk about the sin of David quite often. और हम हमेशा जो दाऊद का पाप है उसके विषय में जिक्र करते हैं। Sometimes we don't give him enough credit, but we talk about his sin of adultery. हम उसने जो पाप किया था बेशबा के साथ उसको बारे में बहुत बातचीत करते हैं। But we don't realize one thing, बट एक चीज हम शायद भूल जाते हैं, that when he wrote Psalm 51, it was a psalm of repentance. लेकिन जब उसने 51 यानी भजन संहिता 51 जब वो लिख रहा था, वो उसने पश्चाताप को अपने हृदय में, जब उसके हृदय में पश्चाताप भर गया था तब लिखा। And he's crying after his child has died. और जब वो उसका बालक मर चुका है पाप करने के बाद, और जब उसका बच्चा मर And he गया says, तब वो लिखता है, Lord, create in me a clean heart और वो लिखते हुए कहता है कि परमेश्वर मेरे हृदय को अब नया बना दो and renew the right spirit within me. और मेरे हृदय में एक अच्छी आत्मा भर दे। Cast me not away from your presence and don't take your Holy Spirit from me. अपने भरपूरी से अपने परिवार से मुझे मत निकाल परमेश्वर। Amen. हालेलुया। What you see after that उसके बाद आप क्या देखते is that David never repeats this mistake. हैं? और उसके बाद वो अपनी जिंदगी में दोबारा ये गलती नहीं करता। And that's what we need to understand. और यही He चीज- did his teshuvah. यही चीज हमें भी सीखने की आवश्यकता है कि उसने जरूर पाप तो कर दिया, लेकिन पाप में गिरा भी, लेकिन वो सही रीति से परमेश्वर की ओर And मुड़ that's गया। the greatness of this man. और यही तो इस व्यक्ति की महानता है। We all can fall. हम सब गिर सकते हैं, But after falling, do we continue on the same path, or after falling, do we turn back to God? David turned back. क्या हम सब गिर सकते हैं, लेकिन क्या गिरने के बाद क्या हम सही में तेशुआ कर रहे हैं या पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर मुड़ रहे हैं? दाऊद ने कर दिया। Another example we see is of a man called Shaul in the New Testament. शाऊल करके जो न्यू टेस्टमेंट में एक नए And नियम he में was a व्यक्ति है। persecutor of Christians, persecutor of, I won't say Christians, but persecutors of believers. मसीह को मानने वाले लोगों को बहुत सताव देता था, Because that time they were not called Christians anyway. क्योंकि उनको क्रिश्चियंस वो टाइम में नहीं बोला They जाता were था। at that time, just for your knowledge, they were at that time called followers of the way. उसको वो टाइम में उनको बुलाया जाता था कि एक तरीके को मानने वाले The लोग, way. एक तरीके को कोई एक हाँ। तरीके को मानने वाले लोग बोला जाता था। And he persecuted these people. और उन लोगों को पौलुस ने सताया। And he was going back to his own place to Syria on the way to Damascus when the Lord met him. और दमास्कस के रास्ते में जब वो जा रहा था तब परमेश्वर ने उसके साथ मुलाकात की। And God and Yeshua met him face to face, and he got blind. We know the story, और right? यीशु उनके उसके साथ साक्षात प्रकट हो गए और वो चेहरा देख के वो अंधा हो गया। But I just want to tell you something light-hearted. और बहुत ही हल्के में एक चीज बताना चाहता God हूँ। didn't change Saul to Paul. और शाऊल को फिर पौल परमेश्वर ने नहीं बनाया। No. He didn't change Saul to Paul because he always had two names. उसके और पहले से ही दो नाम थे। परमेश्वर को मानने के बाद वो शाऊल से पौल नहीं बन गया। In fact, Acts chapter 13 and verse 9 tells us that he had two names. Because he was a citizen of the Roman Empire and he was a Jew. So for the Jews he had the name Shaul, for the Romans he had the name Paul. और प्रेरितों के काम 13:9 में वहाँ लिखा गया है कि उसके पास पहले ही से दो नाम थे। पुराने यहूदियों के लिए वो शाऊल था और जो अन्य जाति के जो लोग हैं उनके लिए वो पौल था। So don't make the mistake of saying God changed Shaul to Paul. परमेश्वर ने उसका नाम नहीं बदला था कि शाऊल से Listen, पौल। I have four names. मुझे मेरे भाई के भी दो नाम है। I have four names. अच्छा सॉरी, भाई के 4 नाम है। Rahul, Vivek, Nikki, Habakkuk. राहुल, विवेक, निकी, हबकुक। 3 पता था, 4 You know me. So when I'm in believer circles, I'm Nikki. When I'm in the office, I'm Rahul. When he's in office, Rahul, that we know, and Yeah. then Nikki, when he's there in friend circle, he's Nikki. So Paul had, when he was among the Gentiles, he was Paul. When he was among the Jewish people, he was Shaul. वो जब अन्य जाति के बीच में था तो उसको पॉल बोला जाता था, लेकिन वो जब वो यहूदियों के साथ आता था उसको शाऊल बोलते थे। God never changed Shaul to Paul, but God changed his nature. लेकिन परमेश्वर ने उसका नाम तो नहीं बदला, लेकिन उसने उसका स्वभाव बदल दिया। Understand that.
आप ये समझे, It was not a name change that happened. It was a change of nature. It was a change of direction that happened. उसके स्वभाव को परमेश्वर ने बदल दिया, उसके मार्ग को परमेश्वर ने बदल दिया। Amen. Hallelujah. And the route that he was going, the road that he was going, he stopped from there and he turned around and he became a follower of the way himself. और उसके बाद जिस मार्ग पे वो चल रहा था, वहां पश्चाताप करने के बाद वो मुड़ा और परमेश्वर के पीछे चलने And the लगा। people he was persecuting, now he joined their team. और जिसको वो सता रहा था, अभी उनको ही साथ वो जुड़ गया। There was action that was taken, my और- brothers and sisters. और And एक- that is biblical एक repentance. कार्य है जो किया गया है और इसी को हम परमेश्वर का पश्चाताप बोलते हैं। Amen. हालेलुया। Sometimes, as servants of God, we make mistakes ourselves. हम परमेश्वर के दास होने के नाते भी कई बार हम गलतियां कर देते हैं। Sometimes God tells us to do something, but we don't do it. परमेश्वर कभी कभी कुछ चीजें हमें बोलता है करने के लिए, लेकिन हम नहीं करते। And one such example that we see in the Bible is a man called Jonah. और एक उदाहरण देखते हैं पुराने नियम में योना नबी के बारे में। Have you heard of Jonah? योना नबी के बारे Can में I see your सुना है? hands if you've heard of Jonah? आपने योना सुना है तो हाथ उठाएं। All right. Now, what was interesting about Jonah is what his name means, first of all. योना के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि उसके नाम का एक अर्थ भी है। Anyone knows what it means? योना नबी के नाम का अर्थ किसी को पता है? Jonah means dove. योना का अर्थ होता है कबूतर। Dove. Wow, what a lovely name. कबूतर, क्या What a प्यारा beautiful नाम है। name. And yet, most Christians don't want to name their children Jonah. कोई भी अपने बच्चे का नाम योना नहीं रखता है। They don't want their children to land up in a fish, right? वो नहीं चाहते कि अपने उसके बच्चे मछली के पेट में We want to eat the fish. We don't want to be inside the fish. हम मछली खाना चाहते हैं, मछली के पेट में नहीं जाना चाहते। Amen. अरे, Okay, now Jonah was from a village called Gath Hefer, गाथ हेफर नाम की एक गांव था, उससे था वो। which actually means wine press. उसका It's a place where they made wine. जहाँ पे वो दाख को उगाया जाता है, उसका अर्थ ही है। And it was very close to Nazareth. Now, Nazareth, you know, is where Jesus, where Yeshua grew up. नासरत का जो जगह है जहाँ पे यीशु मसीह का पालन पोषण हुआ It था, was वहाँ just पड़े about हुए। 5 kilometers from Nazareth. So you understand the geography now. तो उसका जो गांव था वो नासरत से जस्ट 5 किलोमीटर की दूरी पर। Now, God tells this man, he was a prophet of God. परमेश्वर का महान भविष्यवक्ता है ये। And God tells him, Jonah, I want you to get up from where you are and go to Nineveh, the और great परमेश्वर- city, and preach against it. और परमेश्वर बोलता है तो कि चल उठ जाओ ना, जा निनेवे के शहर में और जाके वहां प्रचार कर, उनको Preach वो against Nineveh because their sins have come up against me. क्योंकि जाओ उनका प्रचार करो पश्चाताप के बारे में, क्योंकि उनके जो पाप है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। Now, Jonah, mighty servant of God, man of God, prophet of God. बहुत परमेश्वर का दास, परमेश्वर का नबी So what does he do? क्या करता है वो? He hears God's voice परमेश्वर का वचन सुनता है, and he starts running. उसके बाद भागने लगता है, He's going in a different लेकिन direction. वो भागता कहीं और है। God's telling him, listen, you're in the Galilee. I want you to go there. This is where Nineveh is. Nineveh is Iraq. गलील की जगह में हो, आपको निनेवे की तरफ जाना। निनेवे अभी आज की अगर आप देखें तो वो इराक की जगह है। So Galilee is North Israel, जो गलीली है वो उत्तर का इजराइल में है, and Nineveh is, let's say, on the right, और for जो example. निनेवे है वो थोड़ा सा सीधे हाथ की तरफ जो है। But he goes down south. लेकिन वो वहां से उत्तर से पश्चिम की तरफ जाने की जगह वो दक्षिण And में he goes भागने to a लगता है। place called Jaffa. और जाता है एक ऐसी जगह जिसका नाम है जाफा, And that's a seaport. It's one of the old, it's probably the oldest और seaport वो एक in the world. बंदरगाह है, बहुत पुराना बंदरगाह है। If you go to Jaffa in your life, it's the oldest seaport in the world. दुनिया में सबसे पुराना जो बंदरगाह के नाम से जाना जाता है वो जाफा है। Haifa and Jaffa, both seaports on the same coast, oldest in the world. आसपास ही है हैफा और जाफा, पूरे प्राचीन काल से है वो और बहुत ही पुराने हैं। So God is telling him go to Nineveh, but where's he going? He goes to Jaffa, down. निनेवे जाने की जगह वो कहाँ भागने लगता है? जाफा की ओर भागता है। Now Nineveh, remember, is also spoken about by Jesus in the New Testament. निनेवे का जिक्र परमेश्वर ने नए नियम में भी किया है, And he talks about it in the context of repentance. और परमेश्वर ने जब पश्चाताप की बात की तब परमेश्वर ने उसका जिक्र किया है। Okay, now, but let's look at Jonah first. योना को देखें। Now Jonah is supposed to go to Nineveh, but he goes to Jaffa. और योना जो है अभी वो जाफा की ओर भाग रहा है। In fact, Jonah chapter 1 verse 3 says, Jonah arose and fled towards Tarshish away from the presence of God. और उसके बाद योना उठा और तर्शिश की ओर भागने लगा, परमेश्वर के से दूर भागने लगा। So what was his problem? समस्या क्या थी? Nineveh was a bad city.
निनवे जो थी वो बहुत ही गंदी was- राष्ट्र के नाम It was से the जाना जाता capital of the Assyrian Empire, and they were bad people, really bad people. सीरिया का राज्य का वो राजधानी माना जाता था, लेकिन बहुत ही गलत काम होते थे वहां पे। And they were known to be people who would skin other people alive. और उनको इस चीज क्रूरता के लिए जाना जाता था कि वो जिंदे व्यक्ति की चमड़ी उखाड़ देते थे। They were cruel people. इतने क्रूर लोग थे। And Jonah is thinking, what kind of a God is this who wants to have mercy on such people? और ये पर योना सोच रहा है कि अरे ये कैसा परमेश्वर है कि ऐसे लोगों के ऊपर दया दिखाना चाहता है। I'd rather give time to my people Israel. They have enough troubles of their own. ऐसे लोगों के साथ मैं अपना समय और सर क्यों खपाऊं? मैं जाके यहूदियों के बीच में जाऊंगा जो परमेश्वर को मानते हैं। God was thinking differently. लेकिन परमेश्वर का जो सोच थी वो अलग थी। God is a merciful God. परमेश्वर एक दया वाला परमेश्वर। We may not like certain people, certain communities, but God is looking at them from the eyes of mercy. हो सकता है शायद हम कुछ लोगों को, कुछ कम्युनिटी को शायद पसंद ना करते हों, लेकिन परमेश्वर सबको पसंद करता है Because He is God. क्योंकि वो परमेश्वर है। And God told him, you go there. और परमेश्वर बोलता है कि जा उस जगह पे जा, सीरिया में जा। If you have studied what is called the minor prophets, और जो छोटे नबी के बारे में small books of the Bible, तो जो छोटे नबी की पुस्तक है, there's a prophet called Nahum. एक नहूम नाम का एक नबी है। Now Nahum also writes about Nineveh. In fact, he writes about the destruction of Nineveh. नबी जो है नहूम, वो निनवे के नाश होने के विषय में लिखता है। Because he writes 150 years after Jonah. 150 साल, जब योना के 150 साल बाद की एक घटना को वो जिक्र करता So है। what we realize is that Jonah did his job, the people repented, but after 150 years again they went back into sin, and this time God destroyed them. तो अभी हमें क्या दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि योना को परमेश्वर ने भेजा निनवे में, निनवे के लोग ने पश्चाताप किया परमेश्वर की ओर, परमेश्वर ने उनको अनुग्रह दिया, लेकिन 150 साल के बाद फिर से वो वापस मुड़ गए उसी पाप में। और 150 साल के बाद नहूम लिखता है कि कैसे उस शहर का नाश हो गया। Yeah. But let's look at Jonah. अभी योना को थोड़ी देर भूले। God tells Jonah you go, but Jonah is running away from God. परमेश्वर ने बोला कि उठ योना जा, जाके निनवे के पास जा, लेकिन जो निनवे के में जाने की जगह वो जाफा जाने लगा। He goes in the opposite direction. और उल्टे दिशा में भागने लगा। How often are you and I like that? आप और मैं कई बार ऐसा ही तो करते हैं। God wants us to do something, परमेश्वर हमें चाहता है कि हम ये करें, but we see all the troubles instead. लेकिन उसके बाद हम बहुत सारी समस्याओं को देखने We see लगते all हैं। the problems. हम सारी समस्याओं को आसपास देखने Our लगते हैं। eyes are no longer on the Lord. Our eyes are upon our problems. उसके बाद हम परमेश्वर का वचन तो सुन लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर देखते नहीं हैं। हम देखने लगते हैं वो सारी समस्याओं को जो हमारे इर्द गिर्द है। Our eyes are upon the obstacles. परमेश्वर की वो सारी कठिनाई, जो मुश्किलें जो दिख रही है हमारे And आसपास, so we say, Lord, forget it. It's not my cup of tea. उसके I'm बाद- going away. और उसके बाद परमेश्वर से बोलते, परमेश्वर वो बहुत सारी दिक्कतें दिख रही है मेरे को, परमेश्वर नहीं 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 मैं जा रहा हूँ। That's what Jonah did. यही तो यूना ने But किया। I tell you, when we run from God and when we run from the call of God, the only way we go is downwards. और हमेशा याद रखें कि जब हम परमेश्वर से भागेंगे, परमेश्वर की ओर नहीं भागेंगे, या परमेश्वर से भागेंगे तो हम हमेशा से नीचे ही जाते रहेंगे। I'm telling you, you may say I'm very spiritual, I'm very good, I'm everything good about me. But when we run from God, we've gone downwards. हमेशा याद रखो, आप जितना मैं बहुत आत्मिक हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, या कुछ भी हो, लेकिन आप हमेशा अगर परमेश्वर से भागोगे तो हमेशा नीचे की ओर ही जाओगे। And the Bible says that he went down to Jaffa. और यहाँ लिखा है कि वो नीचे की ओर भागा, दक्षिण की ओर And the भागा। Bible is using specific language. If you read it, और एक भाषा का जिक्र यहाँ पे लिखा हुआ है, it says he goes down to Jaffa. वो नीचे जा रहा है, Then he goes down into the ship. उसके बाद वो नीचे गया, नीचे के राज्य में गया, उसके बाद वो जो जहाज था वो जहाज में भी वो नीचे की ओर भागा। Then in the ship he goes down into the bottommost part of the ship. और जहाज में नीचे जाकर नीचे के भी और निचले भाग में वो चला गया। So he's running from God and he's going down, down, down. और तब से उसकी जिंदगी में वो जब से वो भागा परमेश्वर की ओर से फिरा, तब से वो नीचे ही तो भाग रहा है, जा रहा है। But God knows how to bring his people back. लेकिन परमेश्वर जानता है कि मेरे लोगों को नीचे से ऊपर कैसे लेके So आना है। God sends a storm, और उसके बाद तूफान आता है, and there's a huge storm on that ship. तो तूफान आके जहाज को हिला देता है। Now Tarshish is basically the British Isles of Britain, Ireland, Spain. That region was called Tarshish in the biblical days. बिब्लिकल के समय में आप उसका जो नक्शा देखेंगे वो ब्रिटेन और स्पेन के एरिया में को तर्शिश बोला जाता है। And those were the best part of the commercial world.
The best activities happened there. और वहां पे हर समय से बहुत से अच्छे तरीके का लेन देन व्यापार के मार्ग के रूप में जाना जाता So in a way, Jonah is choosing the commercial life over the ways of God. है। और जो योना है वो हमेशा एक व्यापार की चीजों की ओर मुड़ने लगा, जाने लगा, ना कि परमेश्वर की ओर। Think about this, okay? It's सोचो something इसके to बारे में consider थोड़ा सा। in our lives. थोड़ा सा सोचें इसके विषय में। But God has got his way to stop him. लेकिन परमेश्वर के पास उस तरीका था उसको रोकने So God sends a storm, का। तूफान आता है, and the people of the ship are now worried. जहाज के लोग परेशान हो जाते हैं And they come to him, Jonah, wake up! You're sleeping. और उसके बाद बोलते हैं योना, अरे तू तो सो रहा है, Come on, there's a storm outside and you're sleeping here. तूफान है और तू सो रहा है मेरे से। So he wakes up, उठता है, and you know what he tells them? उसके बाद उठने के बाद क्या I बोलता am a Hebrew and I fear Jehovah. है? और उसके बाद उठ के बोलता है कि मैं तो एक यहूदी हूँ और मैं परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति हूँ। So he's saying, I don't fear the storm, I fear the one who sent the storm. और उसके बाद वो अच्छी चीज तो बोल ही रहा है कि मैं तूफान से नहीं डरता, मैं तो परमेश्वर से डरने वाला हूँ। What a funny fellow. अच्छी चीज, बहुत ही He knows- मजाकिया व्यक्ति है ये। He knows who sent the storm. उसको पता है कि ये तूफान किसने भेजा। So then the people ask him, what's going on? Have you done something wrong? उसके बाद लोग पूछते हैं कि अरे तूने कुछ गलत तो नहीं किया है। And Jonah says, yes, I'm running away from God. और वो वहां बोलता है, इतना मजे की बात यह है कि वो बोलता है कि हाँ मैं भाग रहा हूँ परमेश्वर So he से। knows what he's doing. उसको पता है कि वो कर क्या रहा है। And then he tells the people, you want to calm the storm, throw me into the और water. उसके बाद वो समाधान भी खुद ही दे रहा है, बोल रहा है कि अरे तुम्हें तूफान को शांत करना है, मुझे उठा के पानी में फेंको, Throw me into the water. मुझे उठा के पानी में फेंक दो। You know, even at this stage, he could have said, Lord, forgive me. I'm going to go to Nineveh. I'll preach the gospel there. यहाँ पे शायद वो कुछ ऐसा भी कर सकता था कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, आप मुझे कहीं और जाना चाहते हैं, मैं कहीं और भाग रहा हूँ, मैं वापस मुड़ के आऊंगा। But shameless fellow says, throw me into the water. और उसके बाद वो एक अच्छा सा समाधान दे रहा है लोगों को कि अरे तुम्हें तूफान को शांत करना है, मुझे उठा के पानी He में still फेंको। not realized. Do we understand? लेकिन वो अभी भी पश्चाताप नहीं कर पा रहा Because है, when we run from God, we become blind. क्योंकि जब हम परमेश्वर से भागने लगते हैं तब हमारी आंख जो है वो अंधी हो And we're जाती है। willing to die. और उसके बाद हम यहाँ तक कि हम मरने के लिए भी राजी हो Jonah जाते was हैं। willing to die. नबी है भी वो मरने के लिए तैयार हो Rather गया। than correct himself, he was willing to die. अपने आप को पश्चाताप करने की बजाय, सही रास्ते में चलने की बजाय वो मरने के लिए भी राजी हो गया। That's where the devil leads us. इसीलिए यही तो When we run from यही तो कुछ शैतान हमारे जीवन में करता है कि वो हमको मरने की ओर ले He जाता है। brings us to that point where we say, "Arey, what is life? Life is useless. I'd rather die." शैतान कुछ ऐसा ही तो करता है हमारे जीवन में कि वो हमको ऐसे मोड़ पे ले जाता है कि आप सोचते हो कि मेरा जिंदगी सब कुछ बर्बाद है, अब But तो बस मरना God ही है। wants us to do teshuvah, to repent, to turn back to लेकिन Him. परमेश्वर ने ये समाधान हमको दिया है जिसका अर्थ है कि तेशुआ यानी कि रुको, मुड़ो और परमेश्वर की ओर फिर जाओ। So the Bible says God prepared a fish और for Jonah. That means God created a new fish for him. बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने ये मछली को बनाया Yeah, He probably made that fish only for Jonah. और हो सकता है शायद ये जो मछली को सिर्फ परमेश्वर ने सिर्फ योना के लिए ही बनाया हो। Just imagine that. It was not a pomfret. एक पॉम्फ्रेट नाम की मछली नहीं, प्रजाति की मछली नहीं थी, It was certainly not a banga. भांगड़ा मछली भी नहीं No, it थी, was something special God made. लेकिन बहुत ही अलग मछली बनाई। Maybe it was a whale. I don't know what it was. बाइबल में इसका जिक्र नहीं है कि I don't know if it was even an anaconda. I don't know. I don't. The Bible doesn't tell us. मगरमच्छ था, लेकिन यहाँ पे Bible doesn't- मछली तो है, It was some fish. वही Okay? तो मछली थी, लेकिन was- कौन सी मछली पता It नहीं। was big enough to swallow a full man alive लेकिन वो इतनी बड़ी मछली जरूर थी कि वो एक इंसान को जिंदा निगल ले, and keep him undigested in the stomach for 3 days and 3 nights. और ऐसी मछली थी कि जिसको वो 3 दिन इंसान को अपने पेट में रखे, लेकिन जो इंसान है वो हजम नहीं होगा 3 दिन में। And that's what Jesus referred to. He said, just like Jonah was in the belly of the fish for 3 days and 3 nights, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. यीशु मसीह ने योना के नबी के बारे में जिक्र करके लोगों को बताया है कि जिस प्रकार योना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, उसी प्रकार मैं भी पृथ्वी की गोद में जाऊंगा और वापस से जी उठूंगा। Amen. So he authenticates the story by saying this. और ये परमेश्वर इस कहानी को बता के एक भविष्यवाणी को बोल रहे थे। Now in the stomach of the fish, suddenly Jonah realizes something's wrong. अब जब वो मछली के पेट में बैठा है, तब वो सोच रहा है और तब उसको ये एहसास I've होता है। gone into the depths of, he says, I've gone into Sheol. Sheol is actually the place of the dead.
और वहां पे लिखा हुआ है कि मैं शियोल नाम की जगह में पहुंचा हूं। शियोल का अर्थ होता है कि एक ऐसी जगह जहां पे जिसको नरक बोला जाता है। So he knows now there's no way out for him. और अब उसको पता है कि वो एक ऐसी जगह में पहुंच चुका है कि जहां वो ऐसे नरक में पहुंच गया है जहां पे वो सिर्फ बाहर ही नहीं आ सकता। And at this place he repents. और बट उस नरक की जगह में जहां वो पहुंच गया है वो उस जगह जाकर पश्चाताप And he करता है prays to God. और उसके बाद परमेश्वर की उपासना करता है। And you can see there is a correction in his life. और तब आप देखते हैं कि वहां अपना जीवन कैसे उसका जीवन बदल रहा है मछली के पेट में। And when God sees that, और जब परमेश्वर देखता है उसके हृदय को मछली के पेट में कैसे बदल रहा है, God instructs the fish, now you vomit. अभी मछली को संदेश देता है परमेश्वर की अब जा शोर में जाके उसको उगल दे। Now fish probably didn't have, the tablets doctors tell us to have before eating, right? और खाने से Candy पहले or something like that. कई बार हमें वो उल्टी करने के लिए एक दवाई भी दी जाती है कि ये खाना खा के उल्टी भी कर सकते हो, Yeah, लेकिन ऐसी so- कोई मछली को दवाई नहीं दी गई थी। God must have given that tablet to the fish and said, now vomit. हो सकता है शायद ऐसी कुछ दवाई परमेश्वर ने उसको दे दी हो। And with all the vomit, out comes Jonah. और मछली क्या करती है, वो जाती है शोर की ओर और जाके उल्टी कर देती है और तब बोरा बाहर But he's still in the ocean, so he gets washed up. और पानी में ही था तो अपने आप को वो साफ करता है And he comes onto dry land. और करके वो तैर के वापस से आता है बाहर। And the first thing that he hears, और पहली चीज जो वो सुनता है, God tells him, go to Nineveh. फिर से परमेश्वर उसको बोलता है कि जा निनवे चले जा। Oh my goodness. I've just gone through all this. अब जाके वो सोच रहा होगा मैंने कहा मैं तो इतना कुछ दुख से होके गुजरा हूँ। Yes, sir, I'm going. अब जाके बोलता है हाँ परमेश्वर मैं जाता हूँ। No more problems for me now, Lord. अभी और समस्या नहीं चाहिए परमेश्वर, जा रहा So हूँ। Jonah did his teshuvah. योना मछली के पेट में रह के उसने तेशुआ किया। इसका अर्थ He है returned कि back to God. उसने पश्चाताप किया और जाके परमेश्वर की ओर मुड़ गया। And God's instructions never changed. पर लेकिन परमेश्वर की जो नियम था, जो उसके लिए जो संदेश था, वो नहीं बदला। Oh no, God doesn't change. परमेश्वर नहीं बदलता है, It's परमेश्वर का we नियम नहीं who need बदलता to है। change ourselves. परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसके लिए, उसके नियम के लिए बदलें, अपने भले के लिए उसके लिए You see, running leads us to blindness. जब हम भागते हैं परमेश्वर से तो हम अंधे हो जाते हैं, But when we repent, our eyes get opened. लेकिन जब हम पश्चाताप कर लेते हैं तो हमारी आंख खुल जाती है। Amen. हालेलुया। Jonah's eyes opened. योना की आंख खुल गई And he realized that he's a prophet of God. और उसके बाद जो है वो उसको याद आता है, अरे मैं तो परमेश्वर का दास हूँ। And the role of the prophet is to bring God's voice to the people. और परमेश्वर के दास का अर्थ क्या है? परमेश्वर के वचन को लोगों को बताना। Amen. Amen. Deuteronomy 13 tells us this. व्यवस्था विवरण 13 में लिखा हुआ है, It tells us that look, a prophet is not about telling the future. A prophet is about bringing the voice of God और to the जो people. भविष्यवक्ता है वो भविष्य को बताने वाला व्यक्ति नहीं है, वो भविष्यवक्ता को ऐसा होना है कि वो परमेश्वर के वचन को लोगों को बताए। That's a true prophet. ये Who brings सच्चा God's word, God's voice to the people. सच्चा भविष्यवक्ता वही होता है जो परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के लोगों को बताए, ना कि भविष्यवाणी बताए। The Bible tells us the prophet may do a lot of things. He may even perform miracles. But if he's taking you away from God's word, he's not a true prophet. अगर बाइबल बताती है कि बहुत से परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता हैं वो बहुत सारी चीजें आपको बताते हैं, सिखाते हैं, लेकिन अगर वो आपको परमेश्वर की ओर से दूर कहीं ले जा रहे हैं तो वो परमेश्वर के व्यक्ति नहीं है। But Jonah realized he has to bring God's voice to Nineveh. लेकिन नबी को पता चल गया योना को कि मुझे परमेश्वर के वचन को उन लोगों तक पहुंचाना है, And he did it. और उसने किया। And the people repented. There was national repentance. The whole nation repented. उसके बाद पूरे राष्ट्र के स्तर पे वो पश्चाताप करने लगे। This man brought revival to a nation. इतना बड़ा एक वहां पे रिवाइवल आ गया, जागृति आ गई कि वो सब पश्चाताप में पड़ गए, Because he heard the voice of God and he obeyed it the second क्योंकि time. परमेश्वर के आज्ञा का योना ने पालन किया तो बेदारी वहां पे आ गई। Amen. And we see God's heart of restoration and mercy. और परमेश्वर के हृदय को हम देख सकते हैं कि कैसा परमेश्वर उनसे भी प्यार करता था और उनको भी ऊपर भी दया दिखाई। And that's what God desires. परमेश्वर यही तो चाहता है हमसे, That we realize our mistakes and we correct ourselves. ताकि हम अपनी गलतियों को माने और अपनी गलतियों से सीखें। Jonah और कुछ सीधा realized करें। and he corrected himself. योना ने उसको सही किया अपनी गलतियों को। The Bible tells us Abraham realized and corrected himself. बाइबल बताती है कि अब्राहम ने भी कुछ ऐसा ही किया। It tells us in Genesis chapter 13 verse 3 and 4 that he comes back to the place of the altar. और बाइबल बताती है उत्पत्ति की किताब में कि वो परमेश्वर के वेदी के पास वापस लौट के आ गया। Altar symbolizes for us prayer. जो परमेश्वर की वेदी है वो प्रार्थना को दिखाती है।
It's a connection between man and God. और वो एक ऐसे चिन्ह को दिखाती है कि आपका रिश्ता परमेश्वर की ओर हो The रहा है। Bible says Abraham came back to the altar. It means he came back to his place of prayer. और बाइबल बताती है कि अब्राहम वापस परमेश्वर की वेदी की ओर आ गया, यानी That's प्रार्थना what की God ओर आ wants गया। for you and me. परमेश्वर यही तो चाहता है आपके But I'll tell you one more story, एक और and then we'll कहानी। end over there. और उसके बाद अंत In the New Testament, there's a man called Zacchaeus. You heard of Zacchaeus? नए नियम में जक्कई नाम का एक व्यक्ति था, सुना है उसके बारे में? Zacchaeus, have you heard of जक्कई Zacchaeus? नाम का जो व्यक्ति है, Okay, Zacchaeus was a short fellow, बहुत ही छोटा एक बौना व्यक्ति था, really small fellow. बहुत ही बौना एक छोटा व्यक्ति He was था। powerful because he was a tax collector, उसकी जो उपाधि थी वो तो अच्छी थी क्योंकि वो कर चुंगी लेने but वाला he was व्यक्ति a था। corrupt tax collector. लेकिन वो क्या था, वो बहुत ही खराब था, He took a lot of bribes. बहुत सी ऐसे घूस लेने वाला व्यक्ति था। But now he hears that the Messiah has come to visit his city of Jericho. और अब वो अब वो जान गया है कि जो परमेश्वर है वो यरीहो में आ रहा है। So he says, I want to see him. अब जो है उसके हृदय में जागा एक ऐसा अभिलाषा, But जो he's, परमेश्वर को but देखना he's चाहता है। short. लेकिन वो छोटा है And he's shorter than the average people there. So he said, I have to climb a tree to see him. और वो इतना छोटा है कि उसको एक पेड़ पे चढ़ के परमेश्वर को So देखना he climbs the tree. और फिर जब वो पेड़ पे चढ़ जाता है, He's a good tree climber. बहुत ही अच्छा पेड़ पे चढ़ने वाला And था, from there he sees the Messiah. और फिर यीशु को देखता है नीचे, And then Yeshua says to him, hey, come down. I'm coming to your house. Let's have a cup of tea और together. यीशु मसीह जब वहां से गुजर रहे होते हैं तो बोलते हैं कि अरे तू नीचे उतारा, मैं तेरे घर में आऊंगा चाय पानी पीने के लिए। Actually, that's wrong because they were more of coffee drinkers in the Middle East Lekin- rather than tea drinkers. चाय से ज्यादा एक्चुअली कॉफी पीने वाले लोग ज्यादा होते हैं अरब नेशन में, All right. So, and Arab nations and Israel, of course. इजराइल। So he says, come on, let's go have coffee in your house. तो वहां पे उस जगह के लोग कॉफी ज्यादा पीना पसंद करते थे, इसलिए परमेश्वर शायद ये कहा होगा कि मैं कॉफी पीऊंगा। maybe Yeshua said, come, let's have a shawarma as well. हो सकता है पर सब ये भी कहा होगा कि मैं शोरमा भी खाऊंगा तेरे घर में आके। So anyway, they go there. और परमेश्वर आते हैं वहां, And while sitting over there, somewhere Zacchaeus realizes his sin. और जब वो परमेश्वर से वार्तालाप कर रहा था अपने घर में बैठ के, तब वो वहां पे उसके हृदय में शायद कुछ उसको पाप का Because he's एहसास in the होता है। presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में ही तो बैठा था वो, And he says to the Son of God, और परमेश्वर के बच्चों को जब वो बोलता he है says, यीशु मसीह को, Master, मालिक if I have taken from people, अगर मैंने लोगों से ले लिया है, I have restored 5 times. मैंने उनको 5 गुना ज्यादा दे दिया है, I have restored 5 times. मैं 5 गुना ज्यादा दे दिया है। Wow. Now where does that come from? ये आया कहाँ से? Zacchaeus knew his scriptures. क्योंकि जक्कई को पता था धर्मशास्त्र, बाइबल। Because the book of Leviticus says, when you've taken something from somebody and you've lost it or you've done something wrong, you restore along with 20% more. और लय अवस्था में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि अगर आप कुछ से कुछ ले लेते हो तो आप उनको 20 गुना वापस लौटा दो। So let's say I borrow his guitar अगर भाई ने मुझसे गिटार ले लिया, and the price of the guitar is 1 lakh अगर इस गिटार की जो फीस है वो 1 लाख है and I break it, और वो टूट जाता है, I have to give him 1,20,000 rupees तो भाई को मुझे 1,20,000 रुपए देने पड़ेंगे as per the वापस। Bible. बाइबल के हिसाब से I 1 don't लाख come and say, sorry brother, I'm under grace, forgive me. तो आगे ये नहीं बोलेंगे अरे मुझे क्षमा कर दो, मैं अनुग्रह में हूँ, मुझे क्षमा कर दो। But you see in the New Testament, नए नियम में Zacchaeus says, I have restored by adding 20%. और वहाँ 5 times. और वो बोल रहा है कि मैंने 1/5, sorry. 1/5 1/5, yeah. मैंने 20 गुना लोगों को वापस दे दिया है। 1/5 is 20%. 1/5 is 20%, 20%। He does exactly what the Bible says. जो बाइबल में लिखा है वो वैसा ही तो And करता है। what is the reply of Jesus? और यीशु मसीह क्या बोलते हैं वापस? He says, salvation has come to this home. और तब यीशु मसीह का उत्तर ये होता है कि अब इस घर में उद्धार आ गया। Because Zacchaeus showed an attitude of teshuvah, which is not just saying sorry, but turning around through actions. क्योंकि परमेश्वर अब जो है जक्कई ने अपने हृदय में, उसका हृदय सही रीति में बदल चुका है और तेशुआ के अस्कर्त के उसने अपना मन फिरा लिया है, मुड़ गया वो परमेश्वर की ओर, और उसने वो कार्य भी किया जो कार्य वो दर्शाता है कि उसने सच में परमेश्वर की ओर मुड़ It गया। was not just words, it was action. सिर्फ बोलना ही नहीं, लेकिन वो कार्य भी दिखा रहा था कि That's उसने what पश्चाताप किया। God expects of you and me. यही तो परमेश्वर आपसे मेरे से अपेक्षा करता है। We need to be restored to God in some areas of our lives. हमें अपने जीवन के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे परमेश्वर वापस से जोड़ना चाहता है। And maybe we should identify those areas. हो सकता है शायद आपको और मेरे को वो
क्षेत्र आपके जीवन का जानने की जरूरत है। We need to be restored to our fellow human beings in relationship. हो सकता है हमारे आसपास के लोगों के साथ भी हमारा अपना रिश्ता ठीक करने की आवश्यकता है। Because maybe we've hurt them, maybe we've done something wrong against them. हो सकता है शायद ने कुछ गलत किसी के प्रति कुछ कर दिया हो, And that requires action, not just words. और उसके बाद वो चीज सिर्फ शब्दों से नहीं लेकिन अपने कार्यों के द्वारा। Words are of no use unless there's action. जब तक हम वो बोलेंगे वो शब्द उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा जब तक वो शब्द कार्य में ना हो। We need to be restored to the faith of the Bible, the true actions of the Bible. और हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जो परमेश्वर के वचन के साथ कार्यों को करते हुए अपना हृदय दिखाना है। And as a body of the Lord, we need to be restored to our brother Israel. और परमेश्वर के शरीर होने के नाते हमारे भाई के साथ हमें हमारा रिश्ता अच्छा करना है, जो कि हमारा भाई जो इज़राइल का देश माना जाता है। We've broken relations with Israel. हमने जो मसीहों ने इज़राइलियों के साथ अपना रिश्ता अलग कर लिया है, But we need to be restored back in that relationship. लेकिन मसीहों को वापस से उस रिश्ते में जुड़ने की आवश्यकता We need है। to feel for our brother Israel. हमारे भाई जो भाई बंधु हैं जो इज़राइली हैं उनके विषय में हमें दुख मनाने की भी We आवश्यकता need है। to love our brother Israel. उनको प्यार करने की आवश्यकता है, And we need to show it through genuine actions. और उसके बाद हमें अपने कार्यों के द्वारा भी ये चीज को दिखाने And की that is आवश्यकता है। simple actions, praying for them every एक day. बहुत ही सिंपल सा चीज जो साधारण व्यक्ति चीज है हम कर सकते हैं कि प्रार्थना उनके लिए। Praying with love, not out of judgment. प्रार्थना उनका न्याय करके नहीं लेकिन प्रार्थना उन प्यार के लिए, Sending help over there. सहायता उनको You can भेज send financial assistance to them. धन उनको भेज सकते हैं। There are widows there, many who have lost their husbands, many children who've lost their fathers in the last 1.5 years of war. 1.5 साल की जो अभी युद्ध चल रहा है वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो विधवा हो गए हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं। When you hear an Israeli soldier has died, you can take for granted that he would probably be in his early 20s, because most Israeli soldiers are in their early 20s. जब आप सुनते हैं कि कोई इजरायली सोल्जर की हत्या हो गई है कि वहाँ पे बहुत सारे जो लड़ाई करने के योद्धा हैं वो 20-25 साल के अंदर ही हैं। Some of them have just got married and have died. कुछ लोगों का तो बस शादी हुई और उसके बाद वो मर गए युद्ध में। If you're not aware, there are still 59 hostages in Gaza. गाजा में अभी भी 49 जो बंधुआई लेके रखे हुए हैं वो लोग। You can, if you want to Google a name called Eli Sharabi, Eli Sharabi. He was one of the hostages that were released from Gaza about a month back. एक महीना पहले ही एली शराबी नाम का एक व्यक्ति है जिसको वहां से गाजा से वो बंधुआई से छुट के आया। You can Google his name and you'll see his photograph before he was taken captive and after he was taken captive. How horrible he looks now. बंधुआई में जाने से पहले और बंधुआई में आज से आने के बाद वो किस तरह दिखता है, आप वो कंपैरिजन कर सकते हैं। His real brother works in the organization where I work. उसका जो भाई है, उसका खुद का भाई है, वो एक ऐसी कंपनी में काम करता है जहाँ पे भाई भी उस कंपनी में काम करता है। One of our employees is still a captive in Gaza. भाई के जो कंपनी में काम करने वाला जो एक व्यक्ति है, This person is a software professional. एक सॉफ्टवेयर में आईटी में काम करने वाला भाई के कंपनी का एक एम्प्लॉय है, वो भी अभी भी गाजा में बंधुआई में पड़ा। We're talking about real people here. हम अभी भी यहाँ पे एक सही मायने में एक आप जैसे मेरे जैसे लोगों के विषय में ही बात। The organization doesn't know whether that person is still alive or not. हमारी भाई की कंपनी को भी पता नहीं है कि वो व्यक्ति जो बंधुआई में गया है वो जिंदा भी है कि नहीं। It's been more than 520 days of captivity. 520 दिन से ज्यादा हो चुके हैं Living in a tunnel, living in like a rat lives. जहाँ पे जैसे चूहे अपना जीवन जीते हैं, ऐसे टनल के अंदर अपना जीवन जी रहे हैं। When Eli Sharabi was released, he said, you know what they would feed us? He said, for 500 days, the only thing I have eaten is 1 pita bread per day. एक दिन में सिर्फ एक बन जैसी जो एक ब्रेड होती है, सिर्फ एक दिन में बस एक बन खाया है उसने। He said, if I was lucky, we would get along with that 1 fig. उसके साथ एक अंजीर का एक जो फल है वो दे दिया जाता था। एक दिन में बस एक बार 500 दिन से ज्यादा उन्होंने सिर्फ वही खाया है। He said we would have to beg to go to the toilet. They would stop us from going to the toilet. हमें टॉयलेट में जाने के लिए भी रोका जाता था, हमें उनसे बोलना पड़ता था हाथ जोड़ के हमें टॉयलेट जाने दो, हमें टॉयलेट जाना है। That is the way they lived for 500 days. इस तरह उनका जीवन जीना पड़ा उनको 500 दिन से भी As a church, we need to be restored to Israel. और हमें कलीसिया होने के नाते हमें
उनके साथ जुड़ने की भी We need आवश्यकता to है। know what's going on. We need to love them and we need to pray for them. हमें ये भी जानने की आवश्यकता है कि क्या चल रहा है वहाँ पे, और हमें उनकी प्यार करने की आवश्यकता है, उनको प्रार्थना करें उनके लिए। Amen. हमें We need to be restored to God. हमें परमेश्वर के साथ अपना संबंध ठीक करना We है। need to be restored to our fellow beings. हमारे जो आसपास के लोग हैं उनके साथ हमारे अपना रिश्ता ठीक करना है। Maybe there's a relative with whom you're fighting. हो सकता है कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं जिनके साथ आपका रिश्ता ठीक ना हो, Do teshuvah. तिशुआ करें, Get restored. रिपेंटेंस करें, मन फिराएं और अपना रिश्ता ठीक करें। We need to be restored to the faith of the Bible genuinely. परमेश्वर के वचन में अपने विश्वास को मानते हुए हमें उसका पालन करना है And we need to be restored to His will. और परमेश्वर के साथ अपने जुड़ जाना है। Amen. Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you and shalom. May God bless you.